विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। संतत ही सत संगत संग, सुरंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरियो तरणी तर, आप रहे लेवतार ना तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छत ही फल पावत है। राव के सुत को तिन त्रास कहाँ, जो चरण गुरु चित लावत है। मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छत ही फल पावत है। राव के सुत को तिन त्रास कहाँ, जो चरण गुरु चित लावत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों जो पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, इसकी विचार भाई हरनाम सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस महीने की संग्रांद 15 तरीक नूं है। आप जी जदों भी गुरु घर आउंदे हो, अंदर दरबार विच अपनी अते दूजियां दी हिफाजत वास्ते मास्क जरूर पा के रखो। गुरु घर दी सेवा वास्ते, गुरु के लंगरां लई रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अपने नावां दे नाल सिंह ते कौर लिखो। जे मां बाप तो भुल गलती हुई है
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਅ, ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਅ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ परम सम्मान योग, परम सत्कार योग, चबर छतर तखत के मालिक, साहिबे इकबाल, साहिबे बरकत, साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, धन धन पिता ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਲ ਸਭ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਰਲ ਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਵ ਸੇ ਕਹੋ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਾ ਗਰਵ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਣ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਛਾਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਕੱਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਰੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰ ਝੁਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਬਚਾ ਲਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੈ, ਸਤਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਵੋਂ, ਸਤਗੁਰ ਸਾਚੈ ਭਾਵੈ। ਸਿਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਨਿਤਰੇ ਸਨ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਉੱਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੋਈ ਆਭੂਖਣ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਹੀਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਕ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਹਿਣਾ ਆਭੂਖਣ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੇਚ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ, ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ, हुकूमत कहती है, औरंगजेब कहता सीस उतार देंगे, गुरु तेग बहादुर साहब मुस्कुराउंदियां कहंदे तुहाडी जुरत नहीं कि तुसी सीस उतार सको। सीस ते असी आप मालक वाहिगुरू दे भाने च देण आए हाँ, जे ओनू भावेगा सीस उतरेगा नहीं, सगों सीस रहिंदी दुनिया तक कायम हो जावेगा। सीस उतरिया कित्थे है? सीस ते सीस गंज साहिब दे रूप विच इस देश दी आन ते शान अणख गैरत बन के खड़ा है, ते लखां सीस रोज उस सीसगंज साहिब नूं सिजदा करके निकल रहे ने। दास ने कई जगह बेनती की कि सानू पता है सीसगंज दे अर्थ की ने। बंगला साहब तो भी दास पिछे बोलिया सी, ते मंजी साहब दीवान हाल दरबार साहब तो भी बोलिया सी। सीसगंज दे अर्थ बेशक कईयां नूं पता ने, पर आम साधारण सिख आम मनुख नूं नहीं पता। सीसगंज हुणे गुरु नानक देव साहब जी का प्रकाश गुरपुरब मनाया ना, ते उत्थे एक गाथा आउंदी है कि कारू बादशाह ने 40 गंज दौलत इकट्ठी कर ली। 40 गंज मतलब 4 खजाने दौलत दे भर लै, कबरां भी पटवा के ते उन्हें सिक्के कढ़वा लै सन। 40 गंज मतलब 40 खजाने। गंज दा अर्थ है खजाना। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कह दिता कि मैं अपना सीस दे के सीस दा खजाना सीस गंज दे रूप विच भर चलिया हाँ, ते जद भी देश कौम ते कोई औंकड़ आवेगी, मरजीवड़े सिरां उत्ते खफन बन के सीस तली ते धर के हर वेले त्यार बर त्यार रहणगे सीस देण लई। यही कारण है कि इस देश दी आजादी नूं अज तक बचाउण विच ते आजादी दिवाउण विच सब तो वड्डा योगदान मरजीवड़े सिखां दा ਸਿੰਘਾਂ दा है। 90% तो ज्यादा जो शहीदियां ने वो गुरु के ਸਿੰਘਾਂ दियां ने। आओ शब्द दा आसरा लैके गुरु कृपा सदका विचार नाल जुड़दे हां। कुछ बेनतियां गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जीवन शहीदी बारे भी करांगे। गुरु रामदास साहब जी दी वडियाई साहब आप करवाउणगे। करो कृपा मन जे किते भटक रहा है, मन नूं आवाज मारो, मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, ते एक बारी गज के उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। संतत ही सतसंगत संग, सुरंग रते जस गावत है। धर्म पंथ धरियो धरनी धर, आप रहे लिव धार ना धावत है। कहते मालक वाहिगुरु जी ने धर्म दा पंथ आप चलाया। धरनी धर दा मतलब हुंदा धरती दा मालक। धर्म पंथ, पंथ कहा जाता रस्ते नूं, पथ तो पंथ शब्द बनिया है, ते उहदे तुरन वाले नूं पंथी कहा जाता है। किसी धर्म नूं भी पंथ कह दिता जाता है। जिस तरह आप अक्सर अरदास करते हैं कि पंथ विच प्यार इतफाक एकता चढ़दी कला बनी रवे। खालसा पंथ बारे पंथ शब्द पथ तो बनिया, यह भी एक राह है धर्म दा। दास ने बेनती की सी कि सीधा राह भावें 100-200 किलोमीटर का होवे, अजकल एक्सप्रेस वे बन गए ने, ते बंदा सीधा तुरया चला जाता है, फिक्र नहीं हुंदा कि किते भटक जावांगा। 100-200 किलोमीटर का राह सीधा होवे परवाह नहीं है,
ਭਾਵੇਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਹਾ ਤਰਾਹਾ ਚੁਰਾਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਫੀਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਗਰ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਜਦ ਪੜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਫੌਜ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੋ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਮਰਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਰੰਗਰੂਟ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧੀਰੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
खालसा अकाल पुरख दी फौज है। यही कारण है। एक दिन दास सुन रहा सी, पुरानी गल है, दिल्ली दी एक मुख मंत्री बोल रही सी कि असी गुरदासपुर दे रहन वाले सी ते छोटे हुंदियां जब ट्रेन विच मां बाप ने भेजना ना ते कल्ली जवान लड़की नूं किसी ने भेजना बेटी नूं ते कहंदे ओ जे ट्रेन दे उस बोगी विच उस डब्बे विच कोई एक भी सिख सरदार बैठा है ना ते वो बेफिक्र हो जाते सन। मां बाप कहते सन हुण कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि एक सिख बैठा है। 14 तो वध जंगां लड़ियां गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने, एक भी जंग च किते भी कोई इहो जी घटना नहीं मिलती, इतिहास किसी ने भी लिखिया होवे, भावें सिखां ने, भावें हिंदुआं ने, भावें अंग्रेजां ने, मुसलमानां ने, पर एक भी घटना नहीं मिलती कि किसी दुश्मन दी भी बहु बेटी दे इज्जत उत्ते किसी सिख ने हथ पाया होवे। कारण की है? ये जो उच्चा किरदार ये सानू बख्शिश कीता, इहदे लई बड़ियां कुर्बानियां देनियां पईयां। हुणे ही भाई रणजीत सिंह जी हैडगंथी साहबान गल कर रहे सी कि सिंह शब्द, वाकई साडे विच कई बंदे वो सिंह लाउणा ही छड्ड गए ने। अजकल विआह दे कार्ड छपदे ने, उन्हां च कई जगह तुसीं देखोगे बड़े आगू बंदे भी जो सिख पंथ की अगवाई करन दा दम भरदे ने, उन्हां दे भी कई विआह दे कार्डां उत्ते वेखोगे अपने नाम नाल ते सिंह लगा है, पर बच्चों दे नाम नाल सिंह नहीं। भी घटो घट उत्थे ही छाप दिओ। कईयां ने भुला दिते सिख परिवार, कई ने दादे परदादे सिख सन ते अगे वो नाम तो हटा दिता, हुण कई मुड़े ने। एज ए हैडगंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब, उत्थे मैं हैरान होया कि जमुना पार तो कई परिवार जिहड़े ने वो वापस सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ आए ने, कईयां ने अमृत छक ले आए। क्योंकि इतिहास जब गुरु तेग बहादुर साहब जी का सुनो, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सुनो, ये साडा सिंह लाउणा कौर लाउणा एवें नहीं मिल गया है, ये सरदारियां एवें नहीं मिल गईयां ने। जिनकी जात बरन कुल माही सरदारी ना भई कदा ही, तिन्ही को सरदार बनाओ तबै गोबिंद सिंह नाम कहाओ। ये दस्तार एवें नहीं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सजा लई सी। 2 तेगां पहनियां सन, 4 जंगां लड़ियां सन शाहजहान बादशाह नाल, ते चारे दी चारे जंगां जित्तियां सन। ये सिख पंथ दा जिहड़ा राह है ना, ये एवें नहीं सानू मिल गया है। बड़ी वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां ने, बड़ी दलेरी सी साडे गुरुआं च ते सिखां च, ਸਿੰਘਾਂ विच। एवें थोड़ा पुकार जद कर रहे सन ते आवाज आ गई। जद हाहाकार मची हुई सी इस देश दे विच, औरंगजेब ने वो जुल्म कीते सन, अत मुका दित्ती सी कि चलोब दिखाए जुल्म कमाए तुर्क बनाए बहु हिंदू, जो जंजू पावे तिलक लगावे ताहे सतावे तुर्क हिंदू। ऐसे ऐसे जालिम अहलकार ते फौजदार कश्मीर भेजे कि पहला तो लोभ लालच दा, दौलत दा, सरकारी नौकरियां दा, जे धर्म छड्ड दिंदे ने तां ठीक है, नहीं तो बच्चों को टोटे टोटे करके मावां दी गोद च पाओ। इतना जलील किया जाता सी इस देश के लोगों को कि इतिहास च कई जगहों ते लिखे आए कि जबरदस्ती मूँह ते थुक दिंदे सन मुगल, अणक गैरत नूं मारिया जांदा सी, लताड़िया जांदा सी, हाहाकार मची सी, रोंदे कुरलाउंदे पुकार कर बैठे। वो कश्मीरी ब्राह्मण ते आवाज इको आई कि जे किते औरंगजेब वर्गे जालम बंदे दे सामने कोई तुहाडी बांह फड़ सकदा है तो केवल तेग बहादुर है। गुरु तेग बहादुर साहब जी बारे कह दिता
क्योंकि उन्होंने दे पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने औरंगजेब दे पिता शाहजहां बादशाह नूं जंग दे मैदान विच एक वारी नहीं 4 वारी हराया है। ते तेग दे बहादुर तेग दे धनी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उत्थे ऐसी तेग वाही सी कि हजारां तेगां जड़ियां ने मुगलों दियां वो धरती उत्ते सटवा दित्तियां सन। गुरु तेग बहादुर साहब जी कोल पुज गए, पुकार करदे हो देखी बेपर सो चल आए पुरी आनंद बाहां साडी पकड़ी हरगोबिंद के नंद। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बाहां फड़ लई, क्योंकि इत्थे दा ते नियम है जो शरण आवे ते सकंठ लावे। ए बिरध स्वामी संदा बांह फड़ी ते कह दिता चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है। मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़ी है। बाह जना दी पकड़ी है सिर दीजै बाह ना छोड़ी है। जे बाह मैं तुहाडी फड़ रहा सिर देना पिया तुहाडी बाह नहीं छड्डांगा, पर एक वादा तुसी भी करके जाओ। तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िया। धरती उत्ते टोटे टोटे होके ते डिग जाना पर अपना हिंदू धर्म ना छड्डना। तुसी वेखो हिंदू धर्म ना छड्डना। कह सकते सन कि तुसी पहला मेरे सिख बन जाओ, मैनू गुरु धारण करो, फिर मैं तुहाडी रखिया करांगा। पर गुरु दरबार दे विच ऐसा कोई नियम नहीं है। अमृत छकाउण लग्गिया इत्थे तक कहा जांदा कि जे किते किसे उत्ते कोई जबरदस्ती या कोई इहो जी गल होवे ते बेशक दरवाजा खुला चले जाओ, क्योंकि इत्थे प्रेम दी खेड है, जबरदस्ती दी कोई खेड नहीं है। खैरदास अर्ज करिया सी सतगुरु कहंदे बाह जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजा बाह ना छोड़ी है। पर अज हालात की ने? गुरु ग्रंथ साहब जी दी परिक्रमा करके लावां लईयां जांदियां ने, आनंद कारज पढ़ाया जाता है, उपदेश गुरु ते वचन दिता जाता है। पति पत्नी वालों एक दूजे नूं गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच पा के, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं विच पा के साक्षी मन के, साखी मन के। ते कमाल दी गल है 4 दिन बीतदे ने ते पति बांह छड़ दिंदा या पत्नी बांह छड़ दिंदी है। साडे गुरु ने तां सिर दे के भी ब्राह्मणा दी बांह नहीं छड्डी। तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलू मैं साका। गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी ने इन्हां नूं कह दिता जद वेख्या अखां च अथरू ने, कुछ नाल औरतां बेटियां भी ने। ते राम नारायण दर्दी कहंदा है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कह दिता सतगुरु कहा बच्चिओ तुसी घर ही जाओ, सीस अपना दे के सत बचावांगा मैं। हिंदू मंदिरां दे बुझ रहे दीवियां अंदर तेल खून अपने दा पावांगा मैं। पाया देश दी जड़ां अंदर लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरां दे बुझ रहे दीवियां अंदर खून तेग बहादुर दा बल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरां दे बल रहे दीवियां अंदर खून तेग बहादुर दा बल रहा है। अज जो ये गुरुद्वारियां मंदिरां दे विच रोशनी वेख रहे हैं, ये प्रकाश चानना वेख रहे हैं, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी दी देन है। गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी ने इन्हां नूं कह दिता जाके औरंगजेब नूं कह दिओ कि जे गुरु तेग बहादुर साहब धर्म छड़ देणगे ते असीं भी छड़ देंगे। औरंगजेब ते हुकूमत ने सोचा ते बड़ी सौखी गल हो गई भी एक नूं मनाउणा किहड़ा औखा है। दुनिया दे सुख दौलत कदमां च रोल देंगे, जगीरां ला देंगे, नाम उन्हां दे इत्थे गल ना मुकी ते असीं उन्हां नूं पीर करके मन लांगे, अपना गुरु बना लांगे। जे गुरु ही रहना चाहणगे गुरु अपना बना लांगे। कोई हीला वरतांगे धर्म छड्डण ते मजबूर कर दांगे, ते जे फिर भी ना मन्ने ते फिर अत दे जुल्म करांगे। पर इन्हां नूं की पता
कि धर्म की ध्वजा गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं डगाउणा इन्हां दे वस की गल नहीं। आके ब्राह्मणों ने कह दिता ते गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु आप दिल्ली वल तुर पाए। देखो गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने जो बचन बाद च कहे ना, एवें नहीं कह दिते। तेग बहादुर सिमरै हर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। अज भी जे गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं कोई उस जज्बे उस भावना नाल याद करे ना, सिमरे, गुरु तेग बहादुर साहब सहाई हुंदे ने। आदत पाओ, जद भी मन घबरावे, जरूरी मन घबरावे, बहुती प्रसन्नता भी मिले, आदत पाओ धन गुरु तेग बहादुर साहब, धन गुरु तेग बहादुर साहब, धन गुरु तेग बहादुर साहब चेते करो। जो अंदर धीरज मिलेगा, जो अंदर बरकत मिलेगी, जो मन टिकेगा, हैरान हो जाओगे वेख के। सिमरना की है? गुरु नूं चेते करना। रात नूं अंदर नहीं आ रही ते चुपचाप मन विच ही कहना शुरू कर दियो, धन गुरु तेग बहादुर साहब, धन गुरु तेग बहादुर साहब, धन गुरु तेग बहादुर साहब। पता ही नहीं लगेगा किस वेले सारी फिक्रां, चिंता, डर मुक जाएगा। अज भट्ट साहिबान यही तां गल कह रहे ने, कहंदे जे किते सतसंगत विच आके गुरु रामदास साहब जी दी बरकत, गुरु रामदास साहब जी दे चरना ते पूरन भरोसा रख के कोई जस गायन करदा है ना, तो सारे डर मुक जांदे ने। तुसीं हुणे सुनोगे कि उसनूं ते धर्मराज दा भी डर मुक जांदा है। सुतभान सूरज दा पुत्र धर्मराज नूं कहा जांदा है, जज्जा साहिब डाढ़ा होए तिसनूं मारना साका कोई। जिस गुरु नूं औरंगजेब नहीं डरा सकिया, मुगल हुकूमत दी लखां दी तादाद च फौज नहीं डरा सकी, जिस गुरु नूं वो तेग नहीं डरा सकी कि तेग दे बहादुर सन, उन्होंने चेते करके साडे डर क्यों नहीं मुक जाणगे? कोई सिमरे ते सही उस तरह तुरे ने दिल्ली वल ते आगरे दे विच कमाई है, माता पुकार कर रही है, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब मैं ते आस ला के बैठी हाँ ते इत्थे ते रौला पिया है, सुनन नूं मिल रहा है कि तुसी आप दिल्ली जा रहे हो हिंदू धर्म की रखिया लई औरंगजेब वर्गे जालम वल, पता नहीं की वरतेगा उत्थे। ते मैं ते अरदासां कर रही हां, कंधी उत्ते रुखड़ा है, कोई पता नहीं किस वेले श्वास निकल जान ते मेरे सीस नूं मैं चाहुंदी सां तुहाडे चरनां उत्ते रखां ते तुहाडे वेखदियां वेखदियां मेरे प्राण निकल जान। ये अरदास जद इदां सिमरिया, गुरु तेग बहादुर साहब आगरे वल तुर पए। उस माता दे दरवाजे ते पुज गए। भाई मती दास जी ने दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई, कौन? मां जिस गुरु नूं चेते करदी सी वो गुरु दरवाजे ते खड़ा है। बुढ़े शरीर च पता नहीं कित्थों जान आ गई, एकदम ही दौड़ के दरवाजा खोलिया, अखां नूं एक नवीं रोशनी मिली ते चरना ते सीस निवा के प्रेम विच भिज के हथ फड़ लिया। अंदर साहिब नूं लैके गई, कपड़े दा नवां थान उन्हें उण के रखिया होया सी, भेटा करांगे। वो भेटा कीता जिस तरह इंतजार विच साह अटके होए सन ते चरना उत्ते मत्था टेकिया ते श्वास निकल गए, प्रीतम के देश पुज गई। अज उत्थे माई का थान गुरुद्वारा बनिया होया है। गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते ओहो जिहा यकीन बने, जद बंगला साहब बैठदी है ना या किते भी होइए, जद लाइन सामने आउंदी है, श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए। वाकई अंदरों दुख निकल जाते ने, पर ओह जिहा भरोसा यकीन होवे
ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ हुकूमत ने 500 सोने की मोहरां का इनाम रखे है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो गिरफ्तार करवावेगा, क्योंकि हुकूमत को पता लगा सी कि गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली आउंदे आउंदे किते होर चले गए ने, क्योंकि आगरे वाल चले गए सन। ते ऐलान कर दिता गया सी 500 सोने की मोहरां दित्तियां जाणगियां। साहिब तुसी तां आप जा रहे हो ते कितना चंगा होवे मेरे राही गिरफ्तारी दे दिओ, 500 सोने की मोहरां मैनू मिल जान, मैं गरीब दी गरीबी दूर हो जावे। गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु घोड़े ते सवार, क्योंकि अरदास दे विच ओह भरोसा सी ओहदे कि गुरु नूं याद करांगा गुरु आवेगा। साहब उत्थे पुज गए, ओहदे राही गिरफ्तारी दित्ती, ऐसी बिध बनाई कि उहनूं इनाम मिलिया। गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली पुज गए। जद इत्थे आए ने 3 शर्तां रखियां गया साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सामने। धर्म छड्डो, इस्लाम कबूल करो। जे धर्म नहीं छड्डदे करामात विखाओ, जे करामात नहीं विखाउंदे ते सीस देण लई तैयार हो जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा साडे धर्म में सानू कोई कमजोरी नजर नहीं आउंदी, धर्म असी छड्डांगे नहीं ते करामात असी विखावांगे नहीं। करामात है कहर फकीर ना दस्सै, साईं खड़ा सिर उपर हस्सै। कई बार उह जी गल आवे ना ते गल टुकदी होवे कर देनी चाहिदी है। सानू बड़े भुलेखे ने। अक्सर जद गुरु दरबारां तो, बंगला साहब तो, दरबार साहब तो, सीसगंज साहब तो ये बख्शिशां मिलदियां ने, किसी दी अखां दी रोशनी चली गई सी, इन्हां गुरु दरबारां तो अखां दी रोशनी वापस मिल गई, आवाज वापस मिल गई, रोग कट्टे गए। ते लोग कह दिंदे ने कि ज्ञानी जी की करामात नहीं है। भाई मती दास जी अपने आप नूं आरे नाल चिरवा लैंदे ने ते लगातार जपजी साहब दा पाठ चलता रहिंदा है, ये करामात नहीं है। ते दास अक्सर बेनती करदा कि नहीं ये करामात नहीं है। करामात 2 शब्दां दा जोड़ है, कर्म प्लस अत, करामात। कर्म दी अत, दुनिया च कोई भी बंदा कोई कर्म करता, कोई डॉक्टर है वो अपना कर्म कर रहा, कोई इंजीनियर है अपना कर्म कर रहा, कोई जादू टोने करने वाला वो जा जादू विखा रहा है, कोई रिद्धियां सिद्धियां दा मालक वो कुछ कर जाता जो असी नहीं कर सकते, ते साडे लई करामात बन जाता है। करामात हो गई। बंदे कह देंदे ने भी फलाने डॉक्टर विच इन्नी बरकत है, मुर्दे विच भी जान पा दिंदा है, पर वो डॉक्टर भी किते जाके मुक जाता है, कहता बस जी इतना कर सकदा, हुण दवा कोई काम नहीं करेगी, दुआ करो। मुक गया। उहदे कर्म दी अत है, तां लोग कहंदे सन इहदे हत्थ विच करामात है, ये मुर्दियां च जान पा दिंदा है। रब बारे कदी किसी ने कहा वाहिगुरू बारे, गुरु बारे सतगुर मेरा मार जवाले, सतगुर मेरा सर प्रतिपाले, क्योंकि गुरु करामात नहीं विखाउंदा। जादू टोने करन वाला जादूगर हथ की सफाई नाल कुछ करके विखा दवे, लोग हैरान हो जाते हैं, पर वो मुक जाता किते जाके, बस इतना कर सकदा। जो मुक जाता है उहदे कर्म दी अत है, पर गुरु दे कर्म दी कोई अत नहीं, क्योंकि गुरु तां वाहिगुरू दा रूप हो गया। गुर परमेश्वर एक हो जान, जिथे अवस्था मिल गई, गुर कृपा जनर कौ कीनी तह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। इत्थे पुज के ते क्या गुर परमेश्वर एक हो जान, गुरु ते परमेश्वर एक हो गए। हुण जो वाहिगुरू कर सकदा गुरु भी कर सकदा है। जलते थल कर थलते कुआं, कूप ते मेहर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे किन्ना गल्लां च पिया औरंगजेब, ये नाटक चेटक असी नहीं विखाउंदे, करामात है कहर फकीर ना दस्सै, साईं खड़ा सिर उपर हस्सै। गुरु नानक दा दरबार सब कुछ कर सकदा है, पर तेरे कहण दे उत्ते ये नाटक चेटक नहीं करने। कह दिता ना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अगे चल के, नाटक चेटक किए काजां प्रभ
लोगन कै आवत लाज। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ, ਕਈ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। हाँ, तीजी गल, तृतीय प्राण हान की बात, सो सहे हम अपने गात। तीजी गल, सीस देने ली गल सानू मंजूर है। जद कहा ना सीस देने ली तैयार हाँ, एकदम ही हक्के बक्के सुन हो गए, घबरा गए भी एकदम सीस देने ली तैयार हो गए ने। जे सीस लै लिया तो इनकलाब आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी। फिर लोग सीस देण ते तैयार हो जाएंगे, धर्म कोई ना छड्डेगा। वापस मुड़ गए, कुछ टाइम देंदे आ। विचार कीती, किसी ने विचों कह दिता कि मैं पढ़िया गुरबाणी विचों कि गुरु जो है ना, अपने सिखां नूं मां वांग प्यार करदा। माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नाए, सतगुर पीत गुरसिख मुख पाए। ते मां दा एक सुभाव हुंदा है, कई बारी उहदे उत्ते जिन्ने मर्जी जुल्म हो जाण, सब कुछ बर्दाश्त कर जांदी है। पर जे उहदे बच्चियां उत्ते गल आवे ना, कोई कह दे बच्चियां नूं टोटे टोटे करके गोद च पावांगे ते मां सब कुछ करन नूं मन जांदी है। गुरु दा सीस ना लो, पहला इहदे सिख बच्चियां नूं इहदे सामने टोटे टोटे करो, अत दे तसीहे दे के। की पता गुरु डोल जावे, ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दास ने कईयां तो कल पुछया कि भी तुसी बच्चियां नूं दस्सिया कुछ मती दास जी बारे, सती दास जी बारे, दयाला जी बारे, गुरु तेग बहादुर साहब जी बारे कल दस्सिया कि भी आउण वाला दिन जिहड़ा शहीदी गुरपब है, ते किहड़ा शहीदी गुरपब है? नहीं जी, हुण गुरुद्वारे कौन झूठ बोले? सब दी जुबान बंद। इतने अब इसलिए असी क्यों हो गए हैं? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਭ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ जवान होने वाले पासे ना जान ना, 5-7 साल 10 साल तक दे बच्चे दादा दादी नाल ज्यादा रहंदे ने। क्यों नहीं तुसी साखियां सुणांदे, क्यों नहीं इतिहास सुणाउंदे? भाई मती दास जी ने कह दिता, एक पासे तेरा गुरु है, दूजे पासे असी हां। गुरु वल तुरेंगा करेंगा, करांगे तैनू आरे नाल दो फाड़, साडे वल तुरेंगा दुनिया दे सुख तेरे कदमां च रुलणगे। चौण करके दस, ओ प्रेम दा खिडारी कहंदा, दुनिया के सुख ते मैं मान के वेखे ने, मैनू पता है, पर गुरु के प्रेम में भिज के सीस उत्ते आरा चलवा लेना, जे दुख है या सुख है मैनू पता ही नहीं। इउं करो, 2 कुंगलां आरा चला ही दिओ, फिर दसांगा। क्रोध च आया काजी, इशारा होया, 2 जल्लादां ने आरा सीस उत्ते रख दिता। वेखण वालियां दे हिरदे हल गए। आरा चलिया, केसां नूं पाड़ के, चमड़ी नूं चीर के सिरे चुतरिया, खून दी फुहार छुट्टी। कमजोर दिल बंदे बेहोश होके भी डिग गए। हर पासे हाहाकार है। सोचा डर गया होवेगा, काजी ने इशारा किया, जल्लादां नूं रोकिया, पुछया हुण दस। भाई मती दास जी कहंदे, मैं आसा राग विचों पढ़िया सी कदी, करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। बाबा कबीर साहब जी, ऐ परमात्मा वाहिगुरु, आरा बेशक चल जावे पर तू करवट ना दवी, मुंह ना फेरी, वो मैनू आरे तो ज्यादा दुख देवेगा। सौखी खेड नहीं, आरा चल भी सकता है,
कहते जो तन चीर है तो अंग ना मोरों, पिंड परे तो प्रीत ना तोरों। आरा चल भी जाएगा ना, मुंह नहीं मोड़ांगा। शरीर नू चीर भी दिता, प्रीत नहीं तोड़ांगा। अज मैनू पता लगा है, दो ਉਂਗਲਾਂ जद सीस विच आरे पाया चीर। मती दास जी बोल दे सुन काजी धर तीर। रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप। आरा मैनू भामदा धर्म छड्डना पाप। टुकड़े इस शरीर दे करे जे लख करोड़, तां भी धर्म ना छोड़ सां तेरे दीन नहीं लोड़। आरा मैनू भामदा कारा करो बनाए, सीस जाए ता जान दे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। ये सी शिकर सिक्खी कमाउण दा। शरीर दे दो टोटे कर दिते गए, संखेप विच जिक्र करा, शहीदी हो गई। भाई दयाला जी वल मुड़े, एक पासे गुरु है, दूजे पासे असी। साडे वल तुरेंगा दुनिया दे सुख, गुरु वल तुरेंगा जींदियां जी उबलदे पानी च उबाल देंगे। रूह कंब जाती। कदी सोचो भी आलू गोभी किस तरह उबाली जाती है। गुरुद्वारे आउंदे आ, परवाह नहीं हुंदी, फोन साइलेंट करना है। फिर हैरानगी ते उदों हुंदी है जद उत्थे कढ़ के फोन ते गल करन लग जाते हैं। कमाल दी गल है। कदी करोगे दुनियावी राजे महाराजे दे उत्थे किते गए हो? खैरदास बेनती करे एकाग्रता बनी रहे, कदी अवज्ञा ना करो। गुरु दरबारां च गुरु ग्रंथ साहब जी दा डर अदब सत्कार, जिन मन पाओ तिना मन भाओ। भाई दयाला जी कहते मेरे सिख भरा ने आरे नाल अपने आप को चिरवा के दस दिता है, तुरांगा गुरु वाली। जींदियां जी उबलदे पानी च उबाल दिता गया। भाई सतीदास जी को रूम विच वलेट के साड़ दिता गया। दास कह रहे सौखी गल है, तुसी सुन रहे हो सौखी गल है, औखी गल है अमल कमाउण वाली। गुरु प्रति इउं अपने आप को कुर्बान करना। जब शहीदियां हो गई, काजी कोतवाल जल्लाद सामने आ गए गुरु तेग बहादुर साहब जी दे। सोचा की पता डोल गए होण। कहंदे सतगुरु जी मैं खानदानी काजी हाँ, मेरे बाप दादे परदादे इहो जे फतवे दिंदे आए ने, असी सौखा छड्डांगे नहीं तुहानू। कोतवाल कहंदा मैं खानदानी कोतवाल हाँ। जल्लाद कहंदा मैं खानदानी जल्लाद हाँ, मेरे बाप दादे परदादे भी यही कुछ करते आए ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मुस्कुराउंदियां कहा, भाई सज्जनों कमाल का सबब बनाया मालक वाहिगुरु जी ने। तू खानदानी काजी है, तू खानदानी जल्लाद है, तू खानदानी कोतवाल है, पर एक गल याद रखना मैं भी खानदानी शहीद हाँ। मेरे अजदाद से मिला है मुझे विरसा शहादत का, मेरी औलाद को जागीर है जामे शहादत की, मेरी औलाद को जागीर है जामे शहादत की। मेरे दादा गुरु तो मैनू ये विरासत च मिलिया शहीदी देना, ते अगे मैं अपनी औलाद नू दे चलिया। एक गल याद रखना, तुहाडी कुल विच काजी कोतवाल जल्दाद पैदा होने बंद हो जाणगे, पर मेरे खानदान च शहीद पैदा होने बंद नहीं होणगे। मेरे खानदान च शहीद पैदा होने बंद नहीं होणगे। ये है सच दा राह, डोलना नहीं है। सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान। अज गुरु तेग बहादुर साहब जी की उस्तत पूरी दुनिया च हो रही है। गुरु रामदास साहब जी की उस्तत पूरी दुनिया विच हो रही है। कहंदे मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। मथुरा जी कहंदे ने, कहंदे उन्हां दे भाग बड़े उच्चे ने जो गुरु रामदास साहब जी नाल जुड़े ने, वो मन इच्छत फल पाउंदे ने। रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। जिन्होंने गुरु रामदास साहब जी के चरणों नाल चित जोड़ लिया, उन्होंने हुण धर्मराज का की डर रह गया। वो ते धर्मराज ऐसे चवै कीतो भवन पुनीत, उन्होंने तो यह यकीन बन जाता है
जो भाई मती दास जी, सती दास जी, दयाला जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों उत्ते भरोसा बन गया, उन्होंने डर काहदा रह गया। जो इस राह उत्ते तुर पै सच दे, उन्होंने जम दे राह की की परवाह। जह भैंडे लूटी पनहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। गुरु के सिख ते उस राह उत्ते नहीं तुरदे, उन्होंने ते गुरु बांह फड़ के ते मालक वाहिगुरू जी तक पहुंचा दिंदा है, उहदा ही रूप बना दिंदा है। गुरु रामदास साहब जी के चरणों नाल जो जुड़दा है, मन इच्छत फल पा लैंदा है। जद गल आउंदी ना गुरु रामदास साहब जी के घर दी, गुरु रामदास साहब जी की, ते अक्सर मैनूं गल याद आ जाती है। एक कवि हरदास होया जो बड़ा सुनदा सी गुरु रामदास साहब जी बारे, ते एक दिन पुज गया दरबार साहब। पुजया, हैरान हो गया, ज्यों परिक्रमा विच दरबार साहब दे पैर रखिया, अंदर कुछ होर ही अवस्था बननी आरंभ हो गई। गुरु रामदास साहब जी जानते सन अंदर दी दी भावना, ते कुदरती गल ऐसी बनी, दरबार साहब विच इहनूं बैठण दी जगह सतगुरु ने दे दी। कित्थे मिलदी है जगह बैठण नूं? ऐनी दुनिया जा रही है, किस दे भागां च है? जिन्हों मिल जावे बैठण नूं जगह, वो भागां वाला है। बैठ गया, लगातार बैठा ते कीर्तन सुनदा ही चला गया। घंटियां बंदी कीर्तन सुनिया। जद बाहर निकलिया ना, ते अमृत बाणी ते अमृत नाम नाल सराबोर सी, शरसार सी। ते बाहर निकलदे आई उन्हें शरधा च भिज के गुरु रामदास साहब जी दे दर दरबार साहब बारे दो लाइनां लिख दित्तियां। कवि सी, उन्हें लिखिया, हर मंदिर अर बैकुंठ को तोल लियो हरदास, भारो हो तो सो टिक गयो हौलो चढ़ियो आकाश। भारो हो तो सो टिक गयो हौलो चढ़ियो आकाश। कहंदे मैं ते तोल के वेख्या दरबार साहब नूं, ते जिस बैकुंठ दियां आकाश दे गल्लां करदे ने, कहंदे पता नहीं वो बैकुंठ है भी कि नहीं, पता नहीं कित्थे उड़ गया, गवाच गया। असल बैकुंठ ते ये है, तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे शरधा लाए। गुरु रामदास साहब जी दे चरण, गुरु रामदास साहब जी दा दर असल बैकुंठ है। ते कह दिता, रब के सुत को तिन्ह त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है। उन्होंने की डर, उन्होंने डर मुक जाते ने। जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनो मारना साकै कोए। गुरु की संगत निम्रता सहित बेनती है, जतन करिया करो। बच्चियां नूं गुरु हरकृष्ण साहब जी दे जीवन दी गाथावां इतिहास सुनाया करो। 5.5 साल दी उम्र विच बाला प्रीतम गुरु बन गए ने। तुसी सिख क्यों नहीं बन सकते? बच्चों घटो घट असी सिख जरूर बनना है, घटो घट असी गुरमुखी जरूर पढ़नी है, घटो घट असी अमृत जरूर छकना है। ये पहला तो चीज़ां जे बच्चों दे असी पक्की करांगे ना, ते बड़े सुखी हो जावांगे, फिक्रां मुक जाणगियां। जो बच्चा अमृत छक लएगा, जिसदा पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब बन जावे, ते उन्हां बेटियां दा की डर रह जावेगा सानू? फिर घबरांदे ते उदों आ ना जद बच्चे गुरु तो टुटे हुंदे ने, जद उन्हां नू एक तो एक कीमती मोबाइल, महंगी गड्डियां, फिर पता की हुंदा BMW नाल, फिर किदां चलाइयां जांदियां ने, किस तरह कोर्ट कचहरियां च माँ बाप रुलदे फिरदे ने, बड़ा कुछ हुंदा है। सुख बुरे नहीं ने, दातां बुरियां नहीं ने, पर उन्होंने संभालना सिखाउणा, बच्चों नूं इतना संजीदा बना दिओ, इतना गुरु वाले पासे ला दिओ कि वह भटकण ना। सो इतनी सेवा प्रवान करनी, बेअंत होईयां भुल्लां बख्श लैना। दिओ असीस, कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सब लई अरदास है, श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। बुलाओ फतेह,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।